Very good morning to all of you. I welcome you all on this beautiful and amazing Sunday morning. I trust you all are doing safe, keeping safe and sound. So let's start our session with the powerful prayer Mangal Matri. For the same, please sit in silence, keep your spine erect, your shoulders relaxed, eyes closed, and hands preferably in prayer position. Let's pray together. तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे Over to you, Arvind sir. So, good morning to all. Let us start with our wonderful morning session with the lotus gratitude technique के साथ जो कि मैं डेली कराता हूँ आपको भी करना है. So let us start. कैसे करना है? आंखें बंद रहेंगी. Shoulder should be straight. गुलाब की पंखुड़ियों की तरह एक एक फिंगर को आप ओपन करते हुए बोलेंगे थैंक यू गॉड फॉर बीइंग अलाइव in this great morning. Thank you for my wonderful mind and body. Thank you for my all the body organs working actively, fulfilling their intended purpose of existence. Thank you for my wonderful house and all its resources. Thank you for my wonderful job and wonderful office colleagues. Thank you for my all the wonderful participants. Thank you. Now let us start with 6 metaphors जो कि बहुत important है. metaphor जो कि मैं बताता हूँ आपको उसी तरह से बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? Thank you. Our life is like
rising sun. Our health is like blossoming flower. Our wealth is like continuous, constantly flowing fountain. Our relationship is like endless, spacious, growing green garden. Wow. Our future कैसा होना चाहिए? Golden, expandable highways. Thank you, thank you, thank you. Our immune system is कैसा होना चाहिए? Invincible waves की तरह. Thank you, thank you, thank you. I'm a powerful being. I'm a joyful being. I'm a peaceful being. I'm a magical being. I'm a wonderful being. My body and mind is perfect and healthy. It always be. Divine love, light, power, protection blanket is covering to me, my family, in the form of white light protection shield around us. We all are safe in it. Nobody has entered in. Thank you, thank you, thank you. अब एक या दो एफर्मेशन भी हम डेली बोलना शुरू करेंगे. जैसे मैं बोलता हूँ, every day and always, congratulations Arvind Kumar, every day and always, abundance of health, wealth, happiness, joy, peace, prosperity, power, promotion, progress, harmony, money, strength, stability, growth, miracle, love, knowledge, trust has been flourished, showering, attracting, circulating, manifesting in our life on day-to-day basis, and I'm enjoying the same with the sense of gratitude. All I need is within me now. All right. So friends, जैसे कि मैं अभी आपको पहले भी स्विस, जो कि बहुत ही मास्टर टेक्निक है, इसमें आज मैं आपको स्विस के हाउ टू यूज, कहाँ इसको यूज करना है, जो भी पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन थे कि कैसे यूज करना है, मिस्टर राहुल का भी क्वेश्चन का आंसर आज मिलेगा कि कहाँ यूज करना है. इसीलिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही वंडरफुल तरीके से स्विस, जो कि एक मास्टर टेक्निक है अपने आप में. आज का सेशन बहुत ही पावरफुल इंपॉर्टेंट सेशन है. आज मैं पहले स्विस के आपको यूज बताऊंगा, जो कि हमने मेहनत करके, मैंने और राजीव सर ने एक पूरा डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा. पहले स्विस को आपको समझना होगा, जो कि मैं पिछले सेशन से समझा रहा हूँ आपको. स्विस क्या है? स्विस इज द पेंसिलिन इंजेक्शन की तरह हर जगह लगा लेंगे आप इसको. इट इज ए वंडरफुल, सो सिंपल एंड वंडरफुल टेक्निक. सो डोंट मिस दिस, बी कनेक्टेड विद दिस. अगर टाइम रहा तो मैं आपको एक टेक्निक भी कराऊंगा, अदरवाइज नेक्स्ट इसी ट्यूसडे में हम कराएंगे. तो मैं राजीव सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डिस्प्ले द डायग्राम ऑफ स्विस. जो भी हमने अभी आज डायग्राम बनाया हुआ है गोल्डन हाईवे का, वो व्हाइट स्क्रीन पे ले आए. सो तो हाउ टू यूज द स्विस. मान लो कि स्विस को, पहले आप समझ लो कि स्विस बेसिकली है क्या, स्विस को कैसे, और आप पास्ट पेनफुल मेमोरी में भी कैसे लगाएंगे. तो आपको स्विस को इसी को लगाई रखिएगा और आप इसी को फोकस करिए. कितना मैंने सभ्य भाव से, सरलता से आपको ये स्विस सिखा रहा हूँ, जो कि कहीं भी किसी भी मेंटर के पास आपको इतना बढ़िया स्विस सीखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक मास्टर टेक्निक है. आप किसी भी चीज में, पास्ट पेनफुल मेमोरी, ओवर ईटिंग, नेल बाइटिंग, गेटिंग रिड ऑफ एडिक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट फॉर थायराइड, एनी डिजीज, एक्सीलेंट इन एग्जामिनेशन, इवन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, किसी भी जगह कहीं भी स्टूडेंट के साथ कहाँ भी स्विस लगा दो. और ये 5 मिनट की टेक्निक है. आप क्यों नहीं करते, मेरे को ये नहीं समझ आता, और क्यों नहीं कनेक्ट होते इस सेशन में, आई डोंट नो. जो सोए हुए हैं वो सोए रह जाएंगे, और जो आज आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, दे विल सी द मिरेकल टुडे. दिस इज अ लाइफ चेंजिंग सेशन. तो मान लीजिए कि ये अब मैं आपको हल्के हल्के समझा रहा हूं. अगर मैं कहूंगा पेनफुल मेमोरी में स्विस को कैसे लगाएं, और उससे पहले आपको स्विस बेसिकली समझिए है क्या. स्विस मान लीजिए कि एक हाईवे है, जो कि हमने बनाया हुआ है हाईवे, और हाईवे से स्टार्ट से एक ये टाउन शुरू हो जाता है. टाउन है मान लीजिए, जो कि मैंने बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे. और टाउन में काफी, और इस टाउन से जब भी हमें निकलना है, और टाउन से गुजरने के बाद ये सिटी है, रश है, और इसके बाद हमें एक डेस्टिनेशन में, हमें अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे निकलना है, मान लो कि इसे. तो कैसे, तो आपको स्विस समझना होगा कैसे है. तो जब आप इनिशियल पॉइंट से, बिफोर द टाउन से कार चलाकर, जब हम डेस्टिनेशन पर कार चला के जाते हैं, तो हम डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं. लेकिन होता है, जब हम कार चला के डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो होता है कि जब आपको किसी भी सिटी से निकलना होता है बार बार, तो उसमें, और ये सिटीकली, और इस सिटी में बेसिकली बहुत रश होता है. मानो कि उस सिटी की रोड में
रश है और रोड सारी टूटी हुई है और जाम लगता है, और लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं है। हर बारी आपको यहीं से गुजरना पड़ता है, रश से, टूटी रोड से, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास और कोई वे आउट नहीं। तो आप फिर क्या करते हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड आप क्या करते हैं? और जब भी आप कभी भी सिटी से जाते हैं, कोई आप देखते हैं कि अगर सिटी को क्रॉस करते हैं, तो आप कहीं भी दिल्ली, चंडीगढ़ कहीं भी जाते हैं, हिमाचल, तो आप सिटी से नहीं निकलते, तो आप बाईपास ले लेते हैं, एक छोटा सा बाईपास बना लेते हैं, बाहर की साइड बाईपास बना लेते हैं एक आप उसका। और बाईपास का क्या यूज होता है? बाईपास का यूज होता है कि आपको बाईपास से का बेनिफिट ये होता है कि आपको उस सिटी से, रश वाली सिटी से नहीं निकलना होता। और यही बिल्कुल फ्रेंड्स, यही सिंपल भाषा में बताऊंगा कि स्विच है। और जहां से ही, जैसे ही इसी तरह यही बिल्कुल स्विच है, जैसे ही आपकी शुरू से पास्ट इवेंट से, जैसे ही यहाँ से सिटी शुरू हो जाती है, आपकी कोई भी पीछे की पास्टफुल पेनफुल मेमोरीज शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही आगे आप निकलते हैं सिटी से, तो आपको दुकानें आनी कई तरह से, तो कई तरह की दुकानें आ जाती हैं, तो आप उसी तरह से बाईपास बनाने लगते हैं ताकि आप बीच में से निकाल लो उसको। ऐसे ही और इसी तरह से आपकी जैसे ही पीछे आपकी जैसे ही पेनफुल मेमोरी शुरू हुई है, कोई शुरू हुई है, उसका पहला फ्रेम क्या आता है? फर्स्ट शॉप की तरह आपका पेनफुल मेमोरी का पहला पेन क्या आता है? उसी इमेज को, जैसे मैंने आपके लास्ट सेशन में बताया था, उसी मेमोरी को फर्स्ट फ्रेम क्यू इमेज बना लो। और अगर आपकी कोई पेनफुल मेमोरी है तो उसको क्यू इमेज बना लो। और उसका जैसे ही आप देखेंगे कि उसका पहला फ्रेम ये है, दूसरा फ्रेम ये है, तीसरा फ्रेम ये है, जो भी आपकी पेनफुल पास्ट मेमोरी है, जो भी है उसका, और आपने उसी समय पहले फ्रेम को रोक लिया, और वो आपकी क्या बन गई? क्यू इमेज बन गई। और जहां पर आपको उसको मारना है, क्यू इमेज को क्रश करना है, तो आपको नेचुरली जहां भी आपको आगे बाईपास करके आप अदर यू की पिक्चर बना रहे और आप नए डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, तो इसी तरह से, तो जैसे ही हम डेस्टिनेशन पे हम अपना नया इमेज बनाएंगे, तो वो अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे इमीडिएटली पहुंच जाएगा और आपकी पासफुल मेमोरी निकल जाएगी। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये बार बार आगे ही क्यों जाएगा, पीछे क्यों नहीं रहेगा, वो क्यू इमेज पे क्यों रहेगा? इसीलिए फ्रेंड्स मैंने बताया कि स्विच टेक्निक है जो बहुत सारे ट्रेनर की फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि उसकी मेमोरी पुरानी पर भी बार बार उसका करने के बाद वो पुरानी मेमोरी पर भी रह सकता है। वो क्यों जाएगा? अगर आपने अपना हाईवे बहुत ही वंडरफुल अट्रैक्टिव बना दिया, तो वो पुरानी मेमोरी पे क्यों जाएगा? तो इसीलिए फ्रेंड, जो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था आपका स्विच में, सेकंड स्टेप, जिसमें आपको रिसोर्सफुल स्टेज बनानी पड़ती है फ्रेंड, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। क्यों होनी चाहिए अट्रैक्टिव? नहीं तो वो आपके सारे फ्रेम आपकी पुरानी पे ही मेमोरी पे चलेंगे, माइंड भी आपका पुरानी फैमिली पे चलेगा। तो फिर आप मेरे को कंप्लेन करेंगे कि सर मैंने स्विच किया था लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं आया। इसीलिए नहीं आया कि जो आपका हाईवे है, मान लो कि जो आपका हाईवे है, इस सिटी से गुजरते हैं हम, और फिर ये हाईवे बन जाता है, और अगर मान लो कि इस हाईवे पे आपके साथ रोजाना लूटपीट होने चाहिए, लुटाई होनी शुरू हो जाए, और यहाँ से रोड टूटी पड़ी हो, और उसी बीच में डाकू चोर सारे खड़े हों, तो फिर आप क्या कहेंगे? इसी में, यही पुरानी उसमें ठीक है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि बाईपास पे अगर चोर लाटू जो भी खड़े हैं अनरिसोर्सफुल स्टेट वाले, तो फिर आप कहेंगे हम इसी सिटी से गुजर जाएंगे, so that you can not take the bypass। और इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आपको बताता हूं कि आपको बाईपास को हमेशा
बेहतर बनाना है, जो कि मैं बाईपास का मेटाफोर लेके आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाईपास को बेहतर बनाना है, मींस अपने सेकंड स्टेप को, रिसोर्सफुल स्टेट को बहुत बेहतर बनाना है। और अगर आप बाईपास को बेहतर नहीं बनाएंगे तो लोग फिर वापसी में उसी टाउन से, उसी सिटी के रश से जाएंगे। और अब आपको यही करना है फ्रेंड। मान लेते हैं कि अब आपको एग्जांपल के साथ, आपको मैं वेरियस एग्जांपल के साथ स्विस की टेक्निक इंप्लीमेंट करते हुए बता रहा हूं। मान लो कि आपकी पासफुल पेनफुल मेमोरी है आपके पास, और उसके 2-3 आपके पास के पेनफुल के फ्रेम्स हैं, शुरू हो जाते हैं, और आप पहले ही सीन पर एक अच्छा सा रिसोर्सफुल फ्रेम बना लें। और कैसे देखेंगे? अदर यू को देखें कि वो बहुत खुश है, शांत है, खुश है, और बस उसी खुशी को, उस खुशी की इमेज को बढ़िया बनाकर, जो कि मैंने इमेज बढ़िया बनानी बता दी है, उसमें उसके बेनिफिट क्या होंगे फ्रेंड्स खुश रहने के, वो कैसा दिखेगा और कैसा दिखेगा वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि अदर यू ने वो इश्यू रिजॉल्व कर लिया है, और अगर वो मेमोरी को भूल गया है, तो वो कैसा दिखेगा? दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्विस। ये पिक्चर फ्रेंड सबकी नहीं पड़ती, यही गड़बड़ कर देते हैं आप, और ये पिक्चर सब बनाना ही नहीं चाहते, और या गड़बड़ कर देते हैं और बनाना ही नहीं चाहते। हर और उसी तरह से हर आदमी क्या कहेगा, सर डायबिटीज की क्या पिक्चर बनेगी? तो मैं अब कह रहा हूं कि भाई साहब, अगर डायबिटीज नहीं होगी तो आपकी वो पिक्चर क्या बनेगी, क्या होगी? और उस जो डायबिटीज की जब नहीं होगी तो उसके ऊपर तो कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टिसिपेंट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स के पास 60 ट्रिलियन सेल, 18 मिलियन सेल्स के पास वो एक भी पिक्चर नहीं है कि, तो अगर कि मेरे पास डायबिटिक नहीं है तो मैं फिर कैसा दिखूंगा, कैसे चलूंगा, कैसे बातें करूंगा? वो पिक्चर ही नहीं आप कभी बनाते अपनी लाइफ में। इसीलिए इस पिक्चर को बढ़िया बनाइए। बेनिफिट क्या हुए? अगर डायबिटिक ठीक होगी तो फ्रेंड्स फिर आपके बेनिफिट्स क्या होंगे? उस पिक्चर को, उसी पिक्चर को बनाइए। बस डायबिटिक आपकी खत्म हो जाती है बिल्कुल। उसी तरह आप पेनफुल मेमोरी के लिए भी में, अगर आपने उस पेनफुल मेमोरी में, सपोज अगर उस पेनफुल मेमोरी की पिक्चर आपके पास बार बार आ रही है, अगर उस पेनफुल मेमोरी में आपने शांत रहना सीख लिया, हंसना सीख लिया, एक्सेप्टेंस कर ली, अगर अब उसके बेनिफिट क्या होंगे? अब उसके थोड़े से बेनिफिट बना लो अदर यू में जाकर, और उस पिक्चर को लाकर अपनी इस मेमोरी में लाकर, जो पेनफुल मेमोरी है, बस इस बारी इसके पहले सीन पर एक बारी इंटीग्रेट करो, जो कि मैं अब आपको बड़ी थ्योरेटिकल सारी एक इंसिडेंट्स के साथ, एक टेक्निक के साथ, फिर मैं उसको इन सब की क्लब करते हुए पूरी एक मास्टर स्ट्रोक टेक्निक करवा दूंगा। तो इसलिए ध्यान से सुनिए एक बात को मेरी। एक बारी उसी फ्रेम को, वंडरफुल फ्रेम को, वंडरफुल सीन्स को अपने पहले पेनफुल मेमोरी पे कर लो, फिर दूसरे पर कर लो, फिर तीसरे पर, और जैसे ही आपको जैसे ही कोई भी पेनफुल मेमोरी का सीन आएगा, वैसे ही ठक से, उसी तरह से जैसे आप हाईवे को पकड़ लेंगे, अपना वंडरफुल पिक्चर को, हंसती हुई पिक्चर को वहां पर ठक से लगा दीजिए, और अचानक ही आपका माइंड उसी तरह से हाईवे की तरफ चल पड़ेगा। हो गया ना काम? बस इसी तरह से तो फ्रेंड आपको करनी है, क्या कहते हैं उसको, मैनिपुलेशन करनी है अपने। आपको टेक्निक एक ही लगानी है, और आपको सिर्फ सोचते रहो कि स्विस को मैं और कैसे, कहां लगाऊंगा, जो कि मैंने आपको बेसिक फार्मूला बता दिया है, कहां लगा सकता हूं। और ये फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं कि ये कहीं आपको ये टेक्निक मैंने कहीं किताब में लिखा हुआ है, इन सबको मैंने करके रखा हुआ, किया हुआ है अपने आप, खुद अपने आप। और इसी तरह से एक बारी मेरे को, जैसे कि राहुल का एक क्वेश्चन था, उसी के ऊपर मैं आंसर दे रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिए। राहुल को पता है कि क्या क्वेश्चन था, कि कोई बंदा, उनको पुराना देखते हैं, जाते हैं, तो कोई
घूरता है, तो उस पे स्विच कैसे लगाएंगे, तो उसी पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार मेरे को बहुत ही एक वंडरफुल बैड मेमोरी आ रही थी पास्टफुल की, बड़ी बारी किसी भी तरह की। तो उसी तरह से फिर मैंने एक बहुत ही वंडरफुल गोल बना लिया, जो कि वंडरफुल गोल बनाया। और ये 1-1.5 साल पहले की बात है, 2017 की बात, 18। तो उसी तरह से मेरे को बार बार एक इवेंट याद आ रही थी, बार बार। तो मेरे किसी फ्रेंड की इवेंट याद है, और उसका बैड चेहरा मेरे दिमाग पे बार बार, जो कि मेरे को तंग करने वाली सिचुएशन आ रही थी, बार बार मेरे माइंड में आ रही थी। और जैसे ही वो दिमाग में आती थी, मेरा मूड सा, मेरे को फियर सा शुरू हो जाता था। तो मैंने फिर क्या किया फ्रेंड, आपको मैं टेक्निकल टेक्निक बता रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने उस आदमी की पिक्चर को लिया अपने माइंड में, और ठीक है, मैंने उसको क्यू इमेज की तरह अपने माइंड में ले लिया उसको। फर्स्ट स्टेप में पिक्चर बनाई, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने अपनी रिसोर्सफुल स्टेज की पिक्चर बनाई कि मैं अपनी बहुत ही वंडरफुल मोटिवेटेड बुक्स पढ़ रहा हूं अच्छी तरह से। सेकंड पिक्चर वो बनाई कि मैं बहुत अच्छी तरह की ऐसे किताबें पढ़ रहा हूँ, खुश हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, खुश हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, और किताब पढ़ने के मेरे ये फायदे होंगे। मैंने रिसोर्सफुल स्टेज की पिक्चर बना ली कि किताब पढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, किताब पढ़ने के बाद मेरे को लोग अप्रिशिएट करेंगे, बेनिफिट देखिए। और मैंने उसके सारे बेनिफिट बना ली। और फिर उसी तरह से इस किताबें पढ़ने की रिसोर्सफुल स्टेज का मैंने गोल्डन बॉल बनाया। और उसी तरह से फिर मैंने जब गोल्डन बॉल बना लिया, तो उस आदमी को मैंने अपनी क्यू इमेज को सामने लाया, जो कि जिस आदमी से मेरे को फियर था, डर था, उसको अपने माथे पे लाके इमेज बना के उसको रखा। और मैंने इसी समय उसको लाके खर से अपनी गोल्डन बॉल उसके माथे पर रखी, और उसको तो पुरानी उसकी इमेज को फाड़ दिया, चर की आवाज से फाड़ दिया, और गोल्डन बॉल को वहां पे लाया। तो गोल्डन बॉल को लाते ही मैं अपनी बुक्स पढ़ रहा हूँ, वंडरफुल तरीके से बेनिफिट देख रहा हूँ। और जैसे ही वो आदमी मेरा माइंड पे आता, टच से मेरे को किताबें पढ़ने का मन कर रहा था। हो गया ना काम, देख, हो गया ना काम, वंडरफुल। नाउ फ्रेंड्स, इससे क्या सीखा आपने? योर वीकनेस इज नाउ योर स्ट्रेंथ। तो आर यू गेटिंग माई वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर? तो मैंने 2 मिनट के अंदर आपको कितना वंडरफुल तरीका बताया, उसी तरह से करिए आपको, होपफुली बस हर तरह से इसी तरह से इस स्विस टेक्निक को आप मास्टर स्ट्रोक की तरह, पेंसिलियन इंजेक्शन की तरह हर जगह लगा लीजिए फ्रेंड, डे टू डे लाइफ में, और सीधा मिरेकल जिस चीज को भी। अब मान लीजिए कि आप खाने के लिए कर रहे हैं, अब खाने को कैसे छुड़ाएं, ओवर ईटिंग को कैसे छुड़ाएं? बड़ा आसान है, कैसे छुड़ाएं? पहले ओवर ईटिंग को ले लेते हैं, बहुत इजी है। कैसे? अब मेरे को ये ना कहिएगा फ्रेंड्स की वो रिसोर्सफुल स्टेट कैसे बनती है। वो सबसे पहले मैंने आपको बताई है, गोल्डन बॉल में बनाई है मैंने, 2 बारी गोल्डन थ्रेड में भी बनाई है, गोल्डन थ्रेड में भी बना के दिखाई है, गोल्डन बॉल में भी आपको रिसोर्सफुल स्टेट बना के दिखाई है मैंने आपको, और फिर आगे मैं बनाऊंगा आपको। तो मैं अब एंड में फिर आपको बताऊंगा। तो अब आप इसीलिए ध्यान से एक एक चीज को मैं रिवाइज करवा रहा हूं, हर चीज को मैं रिवाइज करा रहा हूं कि ओवर ईटिंग के लिए, और कैसे आगे एंड में, इस सेशन के एंड में एक बारी और स्विच पूरा कंप्लीट पिक्चर के साथ स्विच बना दूंगा आपको, बहुत ही वंडरफुल तरीके से बताऊंगा, आप देखेंगे कि मिरेकल। तो मान ले, तो सबसे पहले अब मैं बता रहा हूं कि जो स्विच को सबसे पहले नेल बाइटिंग के लिए लगाया था। नेल बाइटिंग में आप करके देखिएगा कैसे करेंगे नेल बाइटिंग में, मानो कि कैसे करेंगे नेल बाइटिंग में, बड़ा सिंपल है, जो कि मैंने बताया था आपको। उससे बच्चे को अगर नेल बाइटिंग करता है तो उससे सबसे पहले क्यू इमेज निकालनी है। और वह बच्चा लेकिन क्यू इमेज क्या जानेगा फ्रेंड्स? बातों बातों में पूछो, बातों बातों में पहले तो उससे दोस्ती करो, रैपो बनाओ, रैपो। और मैं नेक्स्ट सेशन में रैपो बनाना भी सिखाऊंगा आपको कैसे।
और नेक्स्ट सेशन में रेपो का भी टॉपिक आ जाएगा, कैसे रेपो बनानी है आपने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चे से क्या पूछेंगे, कैसे करेंगे, पहले फ्रेंड से, और उससे कहेंगे बच्चे से अगर नेल बाइटिंग करता है तो क्या बोलेंगे, इमेजिन करो। तो इमेजिन करो, सबसे पहला स्टेप बोलेंगे कि बच्चे को कि इमेजिन करो कि तुम्हारा हाथ मुंह की तरफ जा रहा है, और मुंह की तरफ जैसा है, और उसी समय बच्चे को कि जैसे ही हाथ मुंह की तरफ जा रहा है उसको वहीं रोक दो। और कई बार हो सकता है फ्रेंड्स वो बच्चा कहेगा मेरे को कुछ नहीं पता, और तुम भी उसे उसी समय कह दो हाँ ठीक है तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरी बात को सुनते रहो फ्रेंड। इतने से ही उसका काम हो जाएगा, प्रॉमिस करता हूं फ्रेंड, आप करके देखिए उसको। और कई लोग कहेंगे कि सर मेरे को कुछ नहीं दिखाई देगा, और उसको कहोगे कि फ्रेंड्स तुम्हें देखना भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं सीक्रेट, क्योंकि लोगों को ठीक होने में ही इतने सारे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं कि पूछो नहीं, क्योंकि वो ठीक होना ही नहीं चाहते और वो हमेशा नए नए ऑब्जेक्शन लाएंगे। और वो पहले से तय कर लेंगे कि सर मेरी पिक्चर ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी, और वो ही मेरा विजुअलाइजेशन है। और मैं आपको सीक्रेट बता दूं भाई कि इमेजिनेशन में कोई पिक्चर नहीं होती, वो सिर्फ इमेजिनेशन होती है। मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिए ठीक है। तो मैं कब कह रहा हूं कि तुम्हें देखना है, और आपको सिर्फ इमेजिन करना है, जैसे कि काले हाथी पर बंदर बैठ के मैगी खा रहा है, हो गया ना, हो गया ना इमेजिनेशन, हो गया ना, आपको समझ आ गया ना, आपको इमेजिनेशन हो गई। तो इसी तरह और क्या, ठीक है। और उससे बच्चे के से फिर क्या कहेंगे कि अगर तुम्हारा बच्चे मुंह की तरफ हाथ जा रहा है, यही यही हाथ को रोक लो और इसी पिक्चर को देख लो, रोक लिया, बच्चा कहेगा हाँ जी ठीक है। और अगर वो बच्चा इतना भी नहीं रोक रहा, तब भी मैं उसको सिंपल तरीके से भी बता दूंगा आपको कैसे, डरिएगा मत, बस सिर्फ देखिएगा। अब आप उसको बच्चे को कहो कि इमेजिन करिए दूसरी पिक्चर बनाने की, तो अब आपका सेकंड स्टेप आ जाएगा। सेकंड स्टेप जो कि मैंने आपको बताया था, रिसोर्सफुल स्टेप आ जाएगा बनाने का। सेकंड स्टेट में क्या आएगा, रिसोर्सफुल स्टेट बनानी है आपको सिर्फ, कि आप बच्चे से कहो कि इमेजिन करो, और आप बच्चे से क्या कहेंगे, आप बच्चे से कहेंगे कि इमेजिन करो कि ये हाथ वापस जा रहा है, अब इसे वापस जाते हुए पिक्चर को देख लो, देख लिया। और अब आप देखेंगे कि उस बच्चे को बोलोगे कि मैं सिर्फ लाइव आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि जैसे आपने बच्चे के साथ करना है। अब आप बच्चे को कहेंगे कि देखिए कि अब वापस हाथ जा रहा है, और आप देखेंगे कि आपके नाखून वापस आने शुरू हो गए, और सब आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं, और आपको ये 2 या 3 सेंटेंस बोलने हैं, और बस अब इन 2 या 3 सेंटेंस को मैनिपुलेशन करके एक स्टोरी बना देना बच्चे के साथ 30, 40, 50 सेकंड्स की। और भाई वापस हाथ जा रहा है, नाखून आपके आ रहे हैं, और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसी तरह से वापस हाथ जाएंगे तो क्या होगा, आपके नाखून बहुत सुंदर हो जाएंगे। और अगर लोग वापस नाखून अगर आपके आ जाएंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस। और इन 3 या 4 वर्ड्स को लेना है बस, अब इनकी पिक्चर बना लेनी है, वेरी सिंपल, छोटी सी। और आप इमेजिन करो कि आप इस पिक्चर की गोल्डन बॉल बनाई, और जहां पर पुरानी पिक्चर में जहां पे हाथ आपका मुंह में जा रहा था, टक से वहां पर लगा दो, टक से उस गोल्डन बॉल को वहां पर रिप्लेस कर दो, और उस पिक्चर को चर से क्रश कर दो। नहीं है, छोड़ो ना, आप उस बच्चे इसको और आप इमेजिन करो, कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, बच्चे को कहो कि एक सामने देखो कि एक प्यारा सा बच्चा है जो कि तुम ही हो उसका, और उसका हाथ जैसे ही मुंह की तरफ जाता है वो हाथ वापस चला जाता है। 10 या 15 बारी कर लो, वापस चला गया, हाथ वापस करना ले गया, सीख गया, चला गया, अब वो हाथ वापस ले जाना सीख गया, वेरी गुड। और उसे अपनी तरफ जरा सा बुलाओ, और उसे हक करते हो, उस पिक्चर को वहां देखोगे, और मुंह की तरफ हाथ जा रहा है और वापस जा रहा है। इतना करवा देना बस, आप देखेंगे कि आप, और इतने अगर करा देंगे, अगर इतने में ही रिजल्ट ना आ जाए तो बात को ही रही।
तो आप ये स्विस को सीखिए और अपनी फैमिली में हर किसी की लाइफ को चेंज कीजिए। और करने के बाद सडनली 20 बार करने के बाद उसके पेरेंट्स कहेंगे, और अभी तो 6-7 बार ही कर रहा, तो सडनली उसके पेरेंट्स कहेंगे यस सर आपने तो कमाल कर दिया। और उसको कहो कि डेली 1 महीने तक कीजिए और देखिए वंडरफुल रिजल्ट आपकी उसकी लाइफ में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या गड़बड़ होगी? और यहाँ पर क्या गड़बड़ होगी? सर आज नहीं, मैं एक ही दिन कराऊंगा, दूसरे दिन में मेरे को रिजल्ट चाहिए। और फ्रेंड्स आपको पता है कि 100 साल की बीमारी है, तो आपको एक दिन में कैसे हो जाएगी? तो ठीक होगी ही नहीं। और उसी तरह से अगर आपके घर में 10 ट्रक का गार्बेज है, तो मेरे को आपके घर में 10 चक्कर तो लगाने पड़ेंगे ना ट्रक लाकर। और ये तो नहीं कि 10 ट्रकों का गार्बेज मैं एक ही ट्रक में एक ही बार में ले जाऊंगा। हाउ कैन इट विल बी पॉसिबल फ्रेंड्स? हाउ कैन इट विल बी? फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल जो भी वो बोले उसे, और जैसे ही जो भी वो बोले कि मेरा तो मिठाई खाने को, जिस तरह से एग्जाम्पल एक और लेके जा रहा हूँ, मिठाई खाने को बहुत मन करता है, आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है, और उसे कहो कि ये आइसक्रीम है, इसकी तरफ आप जा रहे हैं, और जैसे ही आप जा रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, ये तो आपकी क्यों इमेज आ गई है जैसे आप आइसक्रीम की तरह, और आप कहेंगे कि वो कहेगा कि मेरे को कोई इमेज नहीं बन रही, तो मारो गोली इसकी इमेज को। मैं और सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तो मैं क्यू इमेज को इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि आपको क्यू इमेज, कभी कल को कोई बुक पढ़ेंगे तो आप मेरे को कहेंगे कि सर आपने कभी क्यू इमेज तो उसमें बुक्स में लिखा हुआ है, तो आपने क्यू इमेज के बारे में नहीं बताया। तो इसीलिए, और आपको बताऊं कि आपको सिंपल तरीके से उसको क्या करना है। एडिक्शन खाने पीने की, जो भी मीठा खाने की, आइसक्रीम खाने की है, तो आपको क्या करना है। और आपको कहोगे कि आप उसको कहोगे कि सामने देखो कि आपकी आइसक्रीम रखी है, आइसक्रीम है, क्यू इमेज में ले जाके आप देखेंगे कि आइसक्रीम रखी हुई है, और आप देखेंगे कि आइसक्रीम की तरफ जाते हुए, और आइसक्रीम की तरफ जाते हुए यू टर्न लेते हुए आप उसको इमीडिएटली बोल दें कि अरे ये तो बेकार की चीज है, फालतू में बेकार की चीज, ये तो बेकार की चीज है। और जैसे ये बोलेंगे और सिर्फ आइसक्रीम की तरफ वापस चल पड़ो पीछे की साइड, 5 या 7 बारी जाओ और वापस आ जाओ अदर यू में ले जाकर प्लीज, और उसे कहो कि कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है नहीं। और अगर वापस आ गए तो आपके उसके बोलो कि उसको बेनिफिट्स क्या होंगे, तो आप वो कहेगा कि सर मैं दुबला पतला हो जाऊं, और दुबला पतले के क्या बेनिफिट होंगे, और लंबी दुबला पतला हो जाऊंगा तो उसके आगे क्या बेनिफिट होंगे, मैं लंबी उम्र जीऊंगा, और उसके लंबी उम्र के क्या बेनिफिट, और आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, लंबी उम्र के क्या बेनिफिट होंगे। तो सर मैं अपने बच्चों के लिए किस बच्चे के लिए, नाम लेना बच्चे का, तो बस हो गया काम, ये आपके बेनिफिट जुड़ गए। और अब आप उसकी इमोशन आ गई, और जैसे ही वो कहेगा इस बच्चे के लिए मैं जीना चाहता हूं, और पहले वो कहेगा आई वांट टू फील सेटिस्फाइड, आई वांट टू फील हैप्पी। सेटिस्फाइड में फ्रेंड्स कोई बेनिफिट नहीं होता, हैप्पी में कोई बेनिफिट नहीं है। वो कहेगा आई विल फील हैप्पी, हैप्पी में कोई बेनिफिट नहीं होता। 2 बैग शराब के लगाते हो तब भी आप हैप्पी होते हो, नो हैप्पी। और आप हैप्पी तो किसी को गाली देके भी हो सकते हो, नो। ट्रिगर कहाँ है? आपको मैंने ट्रिगर, और अभी आप इन बेनिफिट्स को अगले सेशन में जब मैं आगे लूंगा गोल बेनिफिट्स में निकालूंगा, आपके पास एक भी बेनिफिट नहीं मिलेगा जब मैं गोल सेटिंग आपकी कराऊंगा, क्योंकि क्यों हमें गोल पूरे करने हैं, ठीक है। और आप एंड में उसे कह दो कि इसको इंटीग्रेट कर दो, और एक बारी दिखा के क्यू इमेज को क्रश करके बेनिफिट देख लो, 20 से 25 बारी करा दो, और देखो 30 बारी दिखा के उसको इंटीग्रेट कर दो, और देखो कि उसकी कैसी है। और उसके बाद 1 हफ्ते तक करा दीजिए, और देखिएगा कि उसका आइसक्रीम और रसगुल्ले को खाने का मन ही नहीं करेगा। और जैसे ही वो आगे अगली बारी वो आइसक्रीम को सामने रखी रहेगी, और उसका मन करेगा कि मैं दूर चला जाऊंगा आइसक्रीम, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग योर बिहेवियर, because you are not having your behavior, you are following the inscription of your mind, और इंस्क्रिप्शन अब आपने अपने माइंड में डाल दी है।
और इंस्क्रिप्शन जो कि आपके माइंड में इमेजिनरी डालते हैं वो भी माइंड आपका रियल मांगता है। सिंपल थिंग। कितना आसान है फ्रेंड्स स्विच को लगाना। और एक आदमी उसी तरह से कहता है, सर आपके पास आता है या मेरे पास आता है कि सर कैंसर में मैं कैसे स्विच लगाऊं। और उससे पूछो कि भैया तुम्हें पता है कि मैं पूछूंगा कि कैंसर क्या है, नहीं तो फिर बीमारी कैसे पता। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपके पास सिंपल सी बात है, आपके पास एक बॉडी है और उसको वे बताएंगे कि बॉडी में कहीं आपके लंप बना हुआ है, ये बढ़ता जा रहा है और इसको ठीक नहीं करना। इमेजिन करो कि ये ठीक हो गया है, तो अब आप क्या देखेंगे सामने अदर यू में जाके? एक ऐसी बॉडी देखेंगे जो कि बिल्कुल क्लियर है, लंप फ्री है। अगर ये फ्रेंड्स क्लियर है तो आपका चेहरा कैसा होगा? आपकी उम्र लंबी होगी और उसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। और अब इस पिक्चर को क्यू इमेज पे ले आओ, ऐसे करवाओ, गोल्डन बॉल से करो, उसको कुछ तो करो, एक बारी आप प्रैक्टिस तो करो, गलतियां तो करो, फिर आपको कुछ नहीं करना। और आपको एक सीक्रेट बता दूं, हर टेक्निक पे, हर इस जो भी मैंने मेटाफर बताए हैं, हर एक को 20 बारी, हर टेक्निक में सिर्फ आपको 20 बारी करके फेल होना है। और आप जैसे ही 20 बारी फेल हो जाओगे तो फ्रेंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप सक्सेस की तरफ आ जाओगे। और बहुत सारे मैंने देखे हैं लोगों को जो बहुत सारे ट्रेनर होते हैं, उनको सिर्फ लाइफ में परफेक्ट बनना है, उनको तो हमेशा हर चीज परफेक्ट चीज चाहिए। और आपको फ्रेंड्स बता दूं कि परफेक्ट कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर बिल गेट्स का बच्चा भी पैदा होगा वो भी इम्परफेक्ट पैदा होता है, और वो कहे कि मैं तो दुनिया का रिच पर्सन हूं और वो कहे कि मेरा बच्चा तो परफेक्ट होना चाहिए, वो भी इम्परफेक्ट ही होगा, वो भी लाउजी होगा, वो भी डेवलप करेगा और वो भी धीरे धीरे ही डेवलप करेगा। आप 20 बारी फेल तो हो एक टेक्निक में, और जैसे ही आप फेल हो अगर तो 20 बारी मेरे से डिस्कस करें और मेरे को मैसेज कीजिए, और फिर देखिएगा कि अगर मैं आपको पूरी तरह से इस टेक्निक को ना समझा दूं, मैं पीछे हट जाऊं, तो बताइएगा मेरे को। मैं कभी नहीं पूछूंगा, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने ये टेक्निक बड़ी लेट सीखी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी लेट हो जाओ। हाँ, इसीलिए आप जो भी है अच्छी तरह सीखो। और अगर आप फ्रेंड्स उसी तरह से कहते हैं, कोई पार्टिसिपेंट मेरे पास आता है, किसी ने बोला था कि अगर मेरे पास थायराइड है तो उसमें मैं स्विच कैसे लगाऊं, तो मैं बताऊंगा कि मेरे को क्या पता थायराइड कैसे होगा। आप उसे पूछेंगे कि प्रेजेंट स्टेट क्या है आपकी थायराइड, और रिजल्ट क्या है उसका, और डिजायर स्टेट क्या है आपकी, वो आप कहेंगे कि सर मेरे को थायराइड नहीं होना चाहिए, बस खत्म बात। तो आप सिंपल अदर यू की एक पिक्चर बना लो जिसमें उसका थायराइड एकदम बिल्कुल ठीक है, गला ठीक है, थायराइड बिल्कुल वंडरफुल। वो कैसा दिखेगा, उसका लुक कैसा होगा, और उसके बेनिफिट कैसे होंगे, और दोनों को वंडरफुली VA के विजुअल्स, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक फीलिंग से भर डालो। उसका लुक में VA डाल दो बढ़िया, और बढ़िया से बेनिफिट में VA डाल दो। अब आप मेरे से ये ना पूछ लेना कि VA क्या होता है, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक फीलिंग के साथ उसको डाल दे। बढ़िया सा विजुअल बनाओ, और बढ़िया सा विजुअल्स बनाओ, बढ़िया सी ऑडिटरी उसमें डालो, वाओ, और वाओ आई एम फीलिंग वेरी गुड, और फीलिंग, और उसकी फीलिंग आ रही है अच्छी, देखिए वो खुश है, वो मूव कर रहा है, बेनिफिट। और थेरे ठीक हो गया तो बेनिफिट्स क्या है आपकी लाइफ के। और अगर वो कहता है कि कोई बेनिफिट नहीं है, तो फिर अगर आपको बेनिफिट नहीं है तो फिर बीमारी से आपको नुकसान ही क्या हो रहा है। बेनिफिट्स भी देखने हैं, और अगर फ्रेंड्स बेनिफिट नहीं देखेंगे तो आपको सीक्रेट बता दूं, माइंड फिर आपको वहां पर रखेगा नहीं। अगर आप बाईपास को यूज करते हैं तो आपको बाईपास के बेनिफिट होने चाहिए।
तभी तो वो इस सिटी से बाहर जाएगी गाड़ी लेकर। अगर बेनिफिट नहीं है बाहर जाने के तो आप वही सिटी के रश वाले टाउन से निकलेंगे। इसलिए मैं आपको A to Z वंडरफुल मास्टर टेक्निक के सारे सीक्रेट शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स, आज सीख लीजिए इसको और शेयर कीजिए। आपको आज मैं स्विस की मास्टरी कराने जा रहा हूं, जो कि आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरे को लग रहा है। हर एक जगह, फॉर एवरी प्लेयर, फॉर हर एक जगह पर, एवरी प्लेस, जहां पर भी आपका कोई गोल है अचीव करने के लिए, आपको एग्जाम पास करना है, स्विस लगा दो, स्विस लगा दो, सिंपल। अदर यू हैज लर्न हाउ टू पास द एग्जाम। आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, किसी ने बोला था मेरे को कि ठीक है ना, तो उस पर भी अदर यू में जाके उस गोल को पूरा करके बेनिफिट देख लो, बेनिफिट के साथ दे लो, इतना ही। और गोल में इसी तरह से, किसी ने मेरे से आईएएस का पूछा था कि आईएएस का एग्जामिनेशन क्या है, गोल में इसी तरह से बेनिफिट्स में जाके फिलिंग के साथ आईएएस में देखिए कैसे आईएएस का एग्जाम पास करना है, उसमें कैसे स्विस लगाएंगे। अदर यू में जाओ, अदर यू में जाओ। अगर आपको आईएएस का एग्जामिनेशन पास करना है या कोई भी एग्जाम पास करना है तो अदर यू में जाओ। अदर यू हैज ऑलरेडी पास द एग्जामिनेशन। और अगर आपका आईएएस क्लियर हो चुका है तो बताइए, तो आप बताइए आपकी ट्रेनिंग कैसी चलेगी उस दिन। साड़ी, आपका सूट कैसा होगा, आपका इंट्रोडक्शन कैसा होगा, वहां पर आप कैसी धूप को एंजॉय करेंगे, आपका मिसूरी में ट्रेनिंग सेंटर, आईएएस के ट्रेनिंग सेंटर में कैसे आप इंटरेक्शन करेंगे, कैसे क्या। और अगर आप आईएएस बन गए तो किस तरह से चार्ज लेंगे, किस तरह से आप लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे होंगे, कैसे अपनी फैमिली में, कैसे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, कैसे अपनी फैमिली में जाके एंजॉय कर रहे होंगे, और कैसे आपकी 20 साल 30 साल आगे की लाइफ जाएगी। आप देखो उनको ना, इधर बेनिफिट ये है वो जो जिसको मैं विजुअल, ऑडिटरी और ऐसी फीलिंग के साथ कह रहा हूं, करके देख लीजिए डेली ही आप। और अगर आपकी चेंज ना हो जाए तो फिर कोई बात रही हर चीज, और सडनली यू विल फाइंड ये तो काम हो गया। इसे 20-30 बार बना लो रोज 5 मिनट के लिए, और ठग से गोल्डन बॉल से लेके अपने माइंड में ले जाके प्लेस कर दो। फिर और नई पिक्चर बना लो उसी में आगे। मैं चाहता हूं कि सर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके थोड़े दिन में आईएएस बन के मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठूं थोड़े दिन पर जाके। ओके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी जाको बैठो और अदर यू में देखो, और देखो अंदर अदर यू में। और एक ही रिलेशन में आप कितनी सारी पिक्चर बना सकते हैं, हम 100 बना सकते हैं। आप यही, अगर आप आईएएस बनेंगे तो फ्रेंड्स आप एक दिन फिर आप एम्बेसडर भी तो बनेंगे, तो बनाइए जितने भी बना सकती हैं पिक्चर। जितनी पिक्चर कलरफुल होगी, ब्राइट होगी, कलरफुल होगी, 3D होगी, यूनिक होगी, जितनी आप उसमें सबऑर्डिनेटी को बढ़िया डालेंगे उतनी ही आपकी फीलिंग बढ़ेगी। जैसे ही फीलिंग बढ़ेगी आपका माइंड उस पिक्चर्स को कैच कर लेगा। फीलिंग नहीं बढ़ी तो नहीं, तो फीलिंग कैसे बनाए, फीलिंग कैसे बनेगी, बी और ए से, विजुअल्स और ऑडिटरी से बनेगी फीलिंग। उन लोगों को देखो कि जो कह रहे हैं आपको, यू हैव डन वंडरफुल थिंग। सो व्हेन यू आर ए आईएएस ऑफिसर, उस वी को, विजुअल्स को देखो, और ऑडिटरी को सुनो। नई ऑडियो नहीं मिल रही तो और ऑडियो डालो। कोई सिग्निफिकेंट आदमी नहीं मिल रहा तो कोई और कोई सिग्निफिकेंट आदमी नहीं मिल रहा तो देखिए कि मदर टेरेसा, विवेकानंद मिले, महात्मा गांधी मिल रहे होंगे, टाटा मिल रहे होंगे। किसी की बातें तो सुनते हुए आपको मेटाफोर बना लीजिए ना। अगर आप कहते हैं कि सर मेरे पास कोई भी नहीं है, तो फिर आपके पास कोई मेटाफोर ही नहीं है, तो फिर आप काहे के लिए गोल पूरा कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई एप्रिसिएशन की फीलिंग ही नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं। सिंपल, मेरा कहने का मतलब है कि काइनेस्थेटिक फीलिंग बढ़ेगी आपकी
बी और ए से, जितना इसे सीक्रेट को नोट कर लीजिए, जितना आप विजुअल्स और ऑडिटरी को आप अच्छा बनाएंगे, उसी समय द मोमेंट योर काइनेस्थेटिक फीलिंग इज वंडरफुल। इसको नोट कर लीजिए। K डिपेंड्स V प्लस A, K इज इक्वल टू V प्लस A। इस सीक्रेट को आप लिख लीजिए कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर। इफ K is missing, then learning is missing. Learning means your subconscious mind has not received that problem. कोई लर्निंग नहीं है, उसने कोई मैसेज ही नहीं लिया। अगर आप फीलिंग को देखते हो तो उसी तरह से आपको मैं फीलिंग का एग्जांपल बता रहा हूं। किसी आदमी को पूछो कि जो ड्रिंक करता है, तो जैसे ही वो शाम को बोर्ड देख लेते हैं ना चलते हुए रोड पर 7 PM, तो 7 PM देखते ही देखिए फिर उसकी कैसी फीलिंग बनती है एक, और इमीडिएटली वो देखता है कि मैं गाड़ी कैसे पार्क करूं, कहां, तो आज एक बोतल तो बनती है, वो होती है फीलिंग। उसी तरह की एक एग्जांपल बता रहा हूं। और उसकी फीलिंग कैसे बनती है, एकदम इमीडिएटली अंदर से उसको कहां से भगवान की पता नहीं कहां से मोटिवेशन आ जाता है बॉटल लेने का। इसी तरह से फीलिंग कैसे, ऑल द एक्शंस आर टेकन बाय द फीलिंग्स। और जैसे ही कोई पार्टिसिपेंट कह रहा था प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, और प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आपको सीक्रेट बता दूं, प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है। उस समय आपकी फीलिंग नहीं थी उस काम को करने के लिए, फीलिंग उस काम को निपटाने के लिए। वेरी गुड। ये देखो ये कैसे राजीव सर ने इमीडिएटली चार्ट बना दिया आपको उसी विजुअल्स का, कैसे मैंने बताया था, डिस्टॉर्ट डिलीट जनरलाइज करके विजुअल ऑडिटरी के साथ जो फीलिंग का चार्ट बनाया था। और उसी समय प्रोक्रेस्टिनेशन की आपकी फीलिंग नहीं है, और ना करने की आपकी उस समय एंजाइटी है, उसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। यानी कि करने में एंजाइटी आ रही है, उस एंजाइटी को तो आपने हैंडल नहीं किया, और जो करने में आपको मोटिवेशन आना चाहिए था वो मिसिंग था। मिसिंग, बस इतनी सी तो बात है। क्योंकि आपको फ्रेंड उस गोल में आपके पास आइडेंटिटी नहीं आ रही है, ये मेरा गोल है। जिस दिन आपका माइंड मान लेगा कि ये मेरा गोल है, उस दिन आप उठ के भाग जाएंगे फ्रेंड्स। और आपको एक बता दूं, यू आर द सेम पर्सन फ्रेंड्स, यू आर द सेम पर्सन कि जैसे ही आपके बच्चे का हाथ आपका आग पर आ जाएगा तो आप वेट करेंगे फ्रेंड, कि आप देखेंगे कि आप कर्फ्यू भी लगा होगा, आप सोचेंगे कि कोरोना के बाद जाऊंगा, नो आपकी, और आप कहेंगे कि नहीं अभी तो मेरा IPL का मैच करेगा, मैं बाद में बच्चे को लेके जाऊंगा, नो बाद में जाऊंगा, नो। आप दौड़ पड़ते हैं, कोई भी कर्फ्यू हो कुछ भी हो, आप हॉस्पिटल की तरह, क्या फीलिंग एक्शन आपका फास्ट हो जाता है अगर आपके बच्चे के साथ कुछ है। एंड यू आर द सेम पर्सन। जब आप कहते हैं कि मेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, और यू आर द सेम पर्सन जब आप कहते हैं कि मेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन है, और यू आर द सेम पर्सन जब आपका बच्चे का हाथ आपकी आपका आंख पर आता है, आप इमीडिएटली उठ पर भाग लेते हैं। उस समय आपका प्रोक्रेस्टिनेशन कहां जाता है फ्रेंड, उसका कहां गई को आपको पता भी नहीं चलता, कौन सी चप्पल पहनी है, क्या पहना है, उल्टी पहनी है, सीधी पहनी, आप भागने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी नहीं देखते कि उस समय की आप बाहर देखते हैं कि कर्फ्यू भी लगा हुआ है, और आप डॉक्टर के पहुंच जाते हैं। इसका सिंपली मीनिंग क्या है, और इसका सिंपली मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, आप गोल के कितने करीब हैं, और वो गोल कितने करीब है आपको बता दूं। बेसिकली आपने फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आपने सारे फॉगी गोल बना कर रखे हैं, सारे ही। आई विल बी सेटिस्फाइड, आई विल बी हैप्पी, आई विल फील कंटेंटेड। ये सारे के सारे फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये इस तरह के गोल होते ही नहीं। यू कैन फील हैप्पी बाय एनीथिंग, वो हैप्पीनेस नहीं होती। आपका ट्रिगर कुछ और होना चाहिए।
वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको स्विस की इसी जो आज आपको मैंने बताया है कैसा लगा, अब मैं आपको 10-15 मिनट के लिए स्विस के ऊपर बहुत ही मास्टर टेक्निक करा रहा हूं। अब मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मैं स्विस के ऊपर आपको बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया कि स्विस के ऊपर मैंने आपको बहुत ही वंडरफुल, अभी आपको सारी तरह से आपको स्विस के ऊपर सारे आपके माइंड में घंटियां बजा दी हैं कि कैसे स्विस आपने कहां कहां यूज करना है। तो अब मेरी तरफ से एक और गिफ्ट ले लीजिए। आज आपको वंडरफुल नेक्स्ट 10 या 12 मिनट का बहुत ही वंडरफुल स्विस बता रहा हूं। आंखें बंद कर लेंगे और राजीव सर अपना मधुर वो माँ परम्बा की वो लगा दीजिए, और एंड में जैसे ही मैं कहूंगा म्यूजिक चेंज, तो आपने म्यूजिक चेंज करना है। तो आज आप सभी पार्टिसिपेंट को मैं उस जोन में लेके जाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। अभी नहीं वो लगाना। और अब मैं आपको स्विस में लेके जा रहा हूँ, गोल्डन बॉल में, और उस गोल्डन बॉल में, और उसमें एक मूवमेंट आएगा कि जो मैंने आपको इतनी थ्योरी सिखाई है, आज ही आपके 60 ट्रिलियन सेल 18 बिलियन न्यूरॉन्स को, स्विस को एकदम आपके माइंड में न्यूरॉन पाथवेज में बिल्डिंग ब्लॉक बना के दिखाऊंगा। और आप एंड में कहेंगे वाह की फीलिंग ना आई तो कोई बात रही। तो आपको मजा आ जाएगा आज का दिन, देखिए। और एक इस मूवमेंट में आएगा जब मैं कहूंगा कि इनवाइट करो अदर यू की इमेज को, और आपने इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से लेंगे, और जैसे ही हाथों को एक्सपेंड करेंगे, और इसी तरह से अपनी सेल्फ इमेज को लेंगे जब मैं कहूंगा, और हक करेंगे ऐसे जैसे बच्चे को करेंगे। और अपने 10-12-15 मिनट ये एक्सरसाइज चलेगी। तैयार हैं आप? अब आप सुन लिए, आंखें बंद रखेंगे, शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसको सीखना नहीं है, करना है। अच्छी तरह से कर लीजिए। आज आपको मैं मास्टर स्ट्रोक सिखा रहा हूं। अगर आपने सीख लिया और किया नहीं, अगर आपने सीख लिया तो फ्रेंड्स आप वो ट्रेनर है, और आप अपने दूसरों पे अप्लाई करेंगे, अपने ऊपर कभी देखा नहीं। और जब दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने ऊपर नहीं किया, तो फिर फ्रेंड्स आपको बता दूं रिजल्ट क्या आएगा। उसी शेफ की तरह वो रिजल्ट आएगा। अपने जिसने उस शेफ ने जिस तरह से अपने खाने को बनाते हुए अपने खाने को टेस्ट नहीं किया, नमक कितना ज्यादा है, और लोगों को परोस दिया, और वो लोगों के खाने को इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि लोगों ने खाने को उसके ऊपर फेंक दिया। ये तो बेकार है। ये बिल्कुल यही हो रहा है अधिकांश पार्टिसिपेंट्स के, हीलर के साथ, ट्रेनर के साथ, अपने ऊपर। ऐसे अदरवाइज मत लीजिए। तो प्लीज इस टेक्निक को सीखना नहीं है, करना है। अपने आपको करना है फ्रेंड्स, करना है। क्लोज योर आईज। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज होता है और कितना मजा आएगा आज आपके लाइफ के हर तरह के गोल ना हो जाएंगे जो भी आपने बनाया है। जैसे प्लीज फॉलो माय कमांड, क्लोज योर आईज, चेहरे पे स्माइल एज इफ यू हैव अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ इन द एरिया ऑफ हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी। क्लोज योर आईज, शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे मेरी टेक्निक में, और चिन थोड़ी सी सीलिंग की तरफ, मानो डिवाइन की आपको ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। स्टार्ट करते हैं। सांसों को हल्के हल्के लेना शुरू कीजिए, कंधे सीधे करिएगा, कंधे सीधे करिए। अब आपकी मीटिंग शुरू हो गई। आपके सामने प्यारे से बीच पर आप अपनी इमेज को देख रहे हैं। जो भी पार्टिसिपेंट अपनी लाइफ की कुछ भी सिचुएशन को, कोई भी किसी भी चीज को हील करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो आप उसी तरह से उसमें कर लीजिए। आज आपकी कोई भी विश, कोई भी ड्रीम, किसी भी तरह का कोई भी अनरिसोर्सफुल स्टेट आपकी ठीक होने जा रही है। प्लीज बी कनेक्टेड। आज प्यारे से बीच पे 30 से 40 मिनट पर आप अदर यू अपनी ही इमेज को देख रहे हैं। उसे हम हेल्दी यू कहेंगे।
अगर हेल्दी यू कहेंगे, परफेक्ट यू कह सकते हैं, ओके यू कह सकते हैं, अमेजिंग यू कह सकते हैं। अगर आज आप किसी इशू से ग्रसित हैं, आपकी माइंड में, आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है, तो देखेंगे कि अदर यू has already been resolved that issue and he is working on that niche wonderfully. आप अगर कोई बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे आपके कोई लम्प है, चाहे कैंसर की प्रॉब्लम है, चाहे डायबिटीज है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपकी, चाहे कोई लम्प है, पीसीओडी है, पीसीओडी है, थायराइड है, अनवांटेड ग्रोथ है, चेहरे पर स्माइल रखेंगे आपको। आज आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आने जा रही है। पेट का खराब होना है, थायराइड है, कुछ भी है, जॉइंट्स में पेन है, चला नहीं जा रहा, घुटने वो है, कुछ भी है, कोई ऐसा लाइफ का इशू है जो कि रिजॉल्व करना चाहते हैं, इसको देखिए। इमेजिन कीजिए अदर यू हैज लर्न हाउ टू रिजॉल्व दैट डिसीज, अदर यू हैज लर्न हाउ टू हैंडल दिस इशू, अदर यू हैज already been resolved that issue. अदर यू पूरी तरह से उस डिजीज को ठीक करना सीख चुका है, अदर यू पूरी तरह से उस इशू को रिजॉल्व कर चुका है या कर चुकी है। जरूरी नहीं कि आपको बताए गए हो या आपको पता हो, लेकिन वो अदर यू को पता है। और उन तरीकों को आजमा कर अदर यू आपके सामने बीच पे खूबसूरत से उन तरीकों को अपना के बीच पे लहरों को देखिए, बीच, वाओ किस तरह का पानी है उसका। अगर आप मालदीव में हैं तो आपको हरे कलर का पानी नजर आ रहा है बीच में, अदरवाइज आपको ब्लू कलर का वाटर देखिए, कैसे अदर यू उस पे घूम रहा है, क्या ड्रेस है, वाओ। वो इमेज कैसी होगी, वो उस इमेज को बनाएंगे फ्रेंड्स आप, वो इमेज ही नहीं आज तक आपने बनाई कभी, आपके माइंड को पता ही नहीं कि क्या इमेज चाहिए। वो आज सिर्फ आपके माइंड को पता है आपको हाइपोथायराइसिस है, आज आपके माइंड को सिर्फ पता है आपको हाइपो है, ये डिजीज है, वो डिजीज है, मैं डायबिटिक हूं, मैं कैंसर हूं। ये हेल्दी इमेज क्या होगी, ये तो कभी आपके माइंड ने आपने कभी देखी ही नहीं। तो इमेजिन कीजिए कि आज आप अपनी उस हेल्दी इमेज को देख रहे हैं, कैसी होगी वो। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं और आपको एक एस्से लिखना हो पूरा 3 पेज का, तो बताएंगे नहीं आप। सर उसका चमकता हुआ चेहरा होगा, बताइए हल्के हल्के उस एस्से में, जैसे जैसे आप बता रहे होंगे मुझे, वैसे ही मैं आपको सीक्रेट बता दूं फ्रेंड, जैसे जैसे आप मेरे को बता रहे होंगे फ्रेंड, उसी तरह से आपकी देख धीरे धीरे पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ विजुअलाइजेशन का, अभी कर लीजिए। उसके खूबसूरत बाल होंगे, माथे पर चमक होगी, कानों में वंडरफुल सी ज्वेलरी होंगी, झुमके होंगे, कौन से कलर के होंगे, मालाबार से खरीदे होंगे, फ्रेंच से खरीदे होंगे, कहाँ से झुमके होंगे, कौन सी ज्वेलरी होगी वो देखिए। गालों पर चमक होगी, वाह, ग्लोइंग फेस होगा, विदाउट एनी मेकअप किए हुए उसके ग्लोइंग गाल होंगे, वाह, पिंक कलर के गाल को देखिए। उसके शोल्डर्स में आत्मविश्वास होगा, उसका सूट कैसा होगा, उसकी साड़ी का कलर कैसा होगा, उसकी चप्पल कैसी होगी, उसके सैंडल कैसे होंगे, उसके शूज का कलर कैसा होगा, वाह। अगर उसकी बॉडी
बिल्कुल हेल्दी एनर्जेटिक यंग होगी तो कैसी होगी? अगर मैं उसको स्कैन करूं तो उसका परफेक्ट वेट होगा। अगर बीमारी ठीक होकर कैसी लगेगी? उसके लंग्स हवा से भर होंगे, ब्लड पूरी तरह से नॉर्मल होगा। वाह, पेनलेस बॉडी हो, पेनलेस बॉडी होगी, आर्टरीज पूरी तरह से डायलेटेड, टाइट होंगी, वंडरफुल फ्लो के साथ होंगी। क्रिएट कीजिए हेल्दी यू को। अभी तो आपके एक्सपीरियंस बहुत सारी जगह पड़ी है। प्लीज क्रिएट दिस, मेक दिस पिक्चर बिगर, ब्राइटर एंड बोल्डर, कलरफुल, यूनिक वन, मानो की वाह। आंखें बंद करके आज बना डालिए। डोंट वेट कि मैं ही सारा तैयार कर दूं। आप भी, आपको भी अब आ गया विजुअलाइजेशन, आप तैयार कर दीजिए अपनी लाइफ का। आप अपने माइंड में लाइए तो सही, किस तरह से आपकी इमेज बनेगी। लोगों को इस इमेज का पता ही नहीं, इसीलिए तो वो हमेशा अपनी बीमारी वाली इमेज ही रखते हैं, अपनी बीमारी वाली इमेज को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको बीमारी वाली इमेज पूरी दुनिया ने दे रखी है। आज फ्रेंड्स आप अपनी हेल्दी इमेज को क्रिएट कर दीजिए। टेक योर 90 सेकंड, आई विल नॉट स्पीक इवन। आज आपको मैं पूरी लाइफ का मिरेकल दिखाऊंगा, चेंज कर दूंगा आपकी लाइफ के सारे मेटाफोर जो भी आपने बनाए हुए। कैंसर लाइलाज बीमारी है, डायबिटीज ठीक नहीं होती, मेरे पास पैसा नहीं होता, मन धन बड़ी मुश्किल से आता है, दमादम से जाता है। आज आपके सारे थॉट्स को चेंज ना कर दिया तो कोई बात नहीं। देखिए जो भी आपके, what will be the blood pressure, कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर 120/80, शुगर लेवल नॉर्मल, खाने से पहले खाने की बाद की शुगर 80/100, वाह, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल, एनर्जी हाई। अगर आप अपने नंबर देंगे मोटिवेशन के 10 आउट ऑफ 10, वाह, मोटिवेशन 10 ऑफ 10, कॉन्फिडेंशियल लेवल 10 ऑफ 10। और आप मिरर में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? वाह, यू आर अमेजिंग, आई लव यू, अपना नाम लेके, आई लव यू अरविंद कुमार अपना नाम लेके मिरर में क्या फीलिंग आएगी? यू आर माई रोल मॉडल, you are my competitor, wow, neither east nor west, you are the best, you are the best। इस तरह की पिक्चर बना दो और पूरे रोम रोम में, पूरे शरीर में आपके घंटियां बज जानी चाहिए। आज आपकी, आज आपको मैंने उस जोन में लेके जा रहा हूँ। मसल पावर वंडरफुल, 10 आउट ऑफ 10, वाह, बहुत ही वंडरफुल कर रहे हैं आप ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। आज आप जितने भी पार्टिसिपेंट है, आज आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको मैं संडे का गिफ्ट दे रहा हूँ। स्माइल रहेगी, चलने का ढंग, खड़े होने का ढंग, उछलने का ढंग, डांस करने का ढंग, उस आदमी की सोच कैसे क्रिएट कीजिए। नहीं हो रही, डोंट वरी, ट्राई करिए, मैं आपको करवाऊंगा। कंधे सीधे रखेंगे प्लीज। आज अपने लिखिए मेंटल स्क्रीन पर वंडरफुल ऐसे लिख डालिए। आज अपना संडे आपका मेमोरेबल बनना चाहिए, गोल्डन डे ऑफ द योर लाइफ बनना चाहिए। जब भी आप इस सेशन के बाद निकलो तो आप 10 ग्राम गोल्ड बन के निकलो, उसी तरह का 10 ग्राम गोल्ड जो कि पूरी फ्रेग्रेंस के साथ पूरी दुनिया में छा जाएगा। आदमी कैसा बनेगा वो हेल्दी यू? हेल्दी आई कैसा है? अगर वो पूरी तरह से हेल्दी होंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? वाह, वंडरफुल। अगर आपकी बीमारी चली गई तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे फ्रेंड्स? बेनिफिट्स क्या? इमोशनल बेनिफिट ढूंढने हैं आपको। बता दूं, आई विल हैप्पी, आई विल सेटिस्फाइड, नॉट दिस। ये सीक्रेट बता दूं, तभी तो आपके ऊपर स्विच काम नहीं करता, तभी तो आपके ऊपर कोई टेक्निक काम नहीं करती। इमोशनल बेनिफिट देखने हैं, ये नहीं कि आई विल बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड तो फ्रेंड 2 शराब के पैक भी करो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, हैप्पी तो आपको 2 कोई पार्टी दे देता है, देन यू विल बी फील हैप्पी।
इसके परे लाइए। कोई आदमी जोड़िए इस बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। अपने 50 साल अगर मैं हेल्दी हो गया तो अगले 50 साल तक मैं जीऊंगा। इसके लिए मैं ऐसा करना चाहूंगा। अपने फादर के ड्रीम, अपनी मदर के ड्रीम को करूंगा, अपने स्पाउस को ड्रीम को पूरा करूंगा। कुछ तो आपको फ्रेंड्स आपके पास ट्रिगर हो। एंकर ही नहीं है ये अंदर से। इसीलिए जो ट्रिगर ही नहीं है, इसीलिए तो हमें वेलनेस नहीं मिल रही फ्रेंड, क्योंकि वेलनेस के हमें आज तक बेनिफिट ही नहीं पता। मैं किन देशों में घूमूंगा, यूएसए घूमूंगा, कनाडा घूमूंगा, स्विट्जरलैंड घूमूंगा, मियामी के बीच पे घूमूंगा, जर्मनी में ढूंढूंगा, उन बेनिफिट्स को एंजॉय करते हुए देखिएगा, को बनाइएगा। कैसे मेरे बच्चों की शादी होगी, कनाडा में होगी, कहाँ होगी, कौन से होटल में होगी, कौन से बीच पे होगी, कैसे रेस्टोरेंट में होगी, कौन कौन लोग होंगे, उन्हीं को देख डालिएगा आज। नंबर 1, वो हेल्दी होकर कैसा दिखेगा, उसकी फिगर कैसी होगी, ड्रेस कैसी होगी, चेहरे का कलर कैसा हो, सोचने का तरीका और इसके बेनिफिट। बस यही दो सीक्रेट है फ्रेंड्स इस रिसोर्सफुल इमेज को बनाने के लिए। I just giving you 1 to 2 minutes more and more make this resourceful image more attractive. ये चलेगा कैसे, ये बात कैसे करेगा? वाह, दोस्ती सीख इन लोगों के, दोस्ती को हैंडशेक करते हुए देखेगा। किन किन बड़े बड़े लोगों से, रतन टाटा, अंबानी, किसके साथ वो हाथ मिला रहा हो, बिल गेट्स, किस तरह का वो बिजनेस करेंगे, बिल गेट्स के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सी कंट्री में करेंगे, बना डालिए आज। ऐसा लगेगा कि आपको सा होने लगा है। बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा वंडरफुल। पहला सीन बनाइए, एक बार फिर शुरू करते हैं। पहला सीन, चमकता चेहरा, खिलखिलाती आंखें, खूबसूरत से हेयर स्टाइल, बढ़िया सी ड्रेस। दूसरा सीन बनाइए, ट्रांजिट हो रहा है, he is walking, she is walking, talking, dancing। थर्ड सीन बनाइए, I feel healthy about wellness, I am the blessed child of the universe। इन सेंटेंसेस को 60 ट्रिलियन सेल, 60 मिलियन न्यूरॉन्स को, 30 मिलियन सेल को सुना दीजिए। नेक्स्ट सीन देखिए, फ्रेम्स बनाना शुरू कर। The other is healthy, enjoying the wonderful life, big car, Mercedes, good house, wonderful long life for someone special. It will be kids, it will be their kids, it will be your kids, it could be your spouse, it could be even you. It could be your inner image. Find it. Figure it. WHY. Why? Why I should be healthy? तुम्हें नहीं पता, अदर यू को पता है। जोड़िए, connected. Sometime he will be sitting in the Prime Minister's office. Other you. Writing a book on wellness, become a life coach, master view decision coach, कोई भी अपना चैनल बना लीजिए आपने भी। Enjoying good beaches, international beaches, domestic beaches, and going around the world, लाइए पिक्चर्स को अपने माइंड में। एक बार फिर सारी पिक्चर को देखेंगे। एक सीन को पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, चौथा सीन। आज जिन्होंने भी सेशन कर लिया उनकी लाइफ चेंज हो गई है, मैं बता दिया आपको। पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, चौथा, एक एक सीन को लाइए। बेनिफिट को बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, लोगों की तारीफ सुनते हैं। कुछ लोग जो खास हैं वो तारीफ कर रहे हैं,
आप अप्रिशिएट करें, चेहरे पर स्माइल आनी शुरू हो गई है आपके, वाओ, कंधे स्ट्रेट रहेंगे, चिन थोड़ी सी की तरफ, और आप इमेजिन कीजिए अदर यू की आवाज एक बार फिर आपके पास आ रही है। आई फील हेल्दी अबाउट माई सेल्फ, कंधे सीधे रखेंगे और इमेजिन कीजिए कि अब आप कंधे स्ट्रेट रखेंगे, आप थ्रेड भेज रहे हैं योर हार्ट टू द अदर हार्ट, अदर यू के हार्ट में। इमेजिन कीजिए आप अपने दिल से गोल्डन थ्रेड अदर यू के दिल पे भेज रहे हैं, गोल्डन थ्रेड। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं, इट इज नॉट जस्ट, इट इज अ गोल्डन थ्रेड फॉर इनविटेशन। यू वांट टू इनवाइट, you want to take all the learning from other you, and imagine कीजिए other you looking towards you with a big smile, other you आपकी तरफ देख रही है big smile के साथ, उनकी आवाज़ों को सुनते रहे, I feel great about myself, I feel healthy about myself, और आप इमेजिन अब अदर यू आपकी तरफ आने शुरू हो गए हैं। दिस इज अ सीक्रेट। कंधे सीधे रखेंगे, फाइनल इंटीग्रेशन, और देखिए कि हल्के हल्के उसकी कदमों की आहट सुनिए, हल्के हल्के वो कुछ कदम आपकी तरफ आने शुरू कर रहे हैं। गोल्डन फ्लैग के इनविटेशन, जब वो नजदीक आए तो फिर एक एक चीज को डिटेल्स के साथ देखिए, कैसे कि आपका उसका फोकस होता है चेहरा, चमकती हुई आंखें, glowing face, sparkling eyes, wow, wonderful, beautiful hairstyle, ड्रेस की डिटेल देखिए, साड़ी, सूट, चप्पल, शूज, उसकी बॉडी में एनर्जी है, उसको फील कीजिए। उसने कौन सा अरमानी का डिओड्रेंट परफ्यूम लगाया हुआ है, उसको फ्रेग्रेंस को सूंघिए, एंड मानो कि आप स्कैनिंग विद योर डिवाइन आईज उसकी बॉडी की स्कैन कीजिए और नजदीक आने दीजिए। और नजदीक आ रहे हैं तो औरों को हक के लिए फैला दीजिएगा, बुलाइएगा, और नजदीक सुनिएगा, आई फील ग्रेट अबाउट माई सेल्फ, आई फील, कंधे को क्लोजर एंड इमेजिन कीजिए, 1 2 and 3 हद यू, इमेजिन कीजिए यू आर इंटीग्रेटिंग विद योरसेल्फ, आपने सब पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिए। मेक दिस पिक्चर ऑन मेंटल स्क्रीन, हाथों को अपना कर दीजिए, पूरी तरह से आपने इंटीग्रेट करके छाती से लगा ली और टाइट कीजिए। The more you are tightening your hug, the more pictures are coming on your mental screen. जो आपके सामने थी अब वो अपने मेंटल स्क्रीन पर है। Make this picture brighter, bigger, bolder. I feel healthy about myself. Feel the joy. दोनों हाथों को ढीला कर दिए, रख दिया, आंखें बंद रखेंगे। एक बार फिर अपने सामने अदर यू, हेल्दी यू, आप इसको 10 टाइम हक करेंगे। अब कुछ और जोड़ना है तो जोड़िए, और फिर देखिए कि अदर यू आपके पास सामने आ रहा है, हक कीजिए, गोल्डन थ्रेड का इनविटेशन दीजिए और फिर हक कर दीजिए। आई फील ग्रेट अबाउट माय सेल्फ, पूरी आवाजों को सुनते रहिए हल्के हल्के, और धीरे धीरे वंडरफुल तरीके से आपने पूरी तरह से लर्निंग ले लिया अदर यू, एंड सी द पिक्चर ऑफ अदर यू। इट इज नॉट अदर यू, it is you yourself. Wow. Next 30 seconds के लिए अपनी हक को बनाए रखिए, और पूरे मेंटल स्क्रीन पे आपके जो भी आपके वो थे ड्रीम से, वो सारे अदर यू से आपने अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिए हैं, और धीरे धीरे आंखों को, हाथों को रब करते रहिए। और इसका मैं एडवांस लेवल ट्यूसडे को फिर कराऊंगा। हल्के हल्के आंखें
बोलना शुरू करिए। आंखों को रब कर लीजिए, हाथों को आंखों पे रब कर लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप बताइए कैसा लगा आज का ये सेशन, जो कि बहुत ही पावरफुल सेशन है। मेरे को तो अच्छा लगा। आई होप यू ऑल आर जॉयफुली एंजॉयिंग द सेम। मैं राजीव सर से कहूंगा कि इसको आज इस सेशन को जरूर फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड कर दो। दिस इज अ वंडरफुल लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर एवरीवन। जी अरविंद सर, I और will कोई upload बोलना it. चाहता है तो बता दे, बोल सकता है। कोई सजेशन कैसा लगा, कोई क्वेश्चन आंसर हम ट्यूसडे ले लेंगे। और आज का सेशन मैंने पूरी टेक्निक के साथ अपना पूरा दिया है। हेलो, मैम मनीषा शर्मा। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। बहुत बढ़िया सेशन था। व्हाट ए वाओ सेशन। इससे Thank- बढ़िया सेशन नहीं हो सकता है। यस, इसीलिए मैंने रवि पहले ही बोल दिया कि इस सेशन को जरूर डालिए अमेजिंग सेशन का नाम देके यूट्यूब पे और फेसबुक पे प्लीज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू। संजय मिश्रा जी नए पार्टिसिपेंट है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कैसा लगा। Ji Arvind sir, very good morning to you. Thank you very much for this session. Basically, it was a quite meditative state. बहुत अच्छा लगा, बहुत डीप में गए। एंड ये अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट था कि अगर शाम को हो सके, क्योंकि वर्किंग डे में क्या होता है कि 9 बजे ऑफिस रहता है, तो बेसिकली इट विल बी इन इवनिंग, it is definitely I'll Okay, not. we will take your suggestion and we will act accordingly. अगर हम नहीं चलाएंगे, अगर हमारे पास पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे, अगर वो अपना एनर्जी चेंज करेंगे, तो हम शाम को भी उसकी रिकॉर्डिंग चला सकते हैं सब्जेक्ट। We can share them recording as well, Sanjay ji, so you can have the recording on the same day. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर हमारा भी होता है, तो यू प्लीज डू योर एनर्जी एक्सचेंज, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा वो चलाऊं, तो हम आपके लिए शाम को भी इसको चला देंगे। एनीथिंग एल्स? Okay, thank you very much. ओके, एनीबॉडी एल्स? सर जी नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं विजय गुप्ता नरेला से बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। हाँ, आ जाइए विजय गुप्ता जी, घूम फिर के फिर आप आ गए। बिल्कुल सर। आज मैं सर कल रात में आपका ये देखे थे, तो मैं सोचा सुबह मैं करूंगा, मीटिंग लूंगा। क्योंकि सर मैंने सभी को कहा हुआ है, घूम फिर के हमारे पास भी जाओगे, जहां जाओगे हमें ही पाओगे। तो सर मैं लेट से ज्वाइनिंग लिया। मैंने सोचा कि 15 मिनट पहले मैं ज्वाइनिंग लिया हूँ सर, लेकिन मैं सोचा कि चलो 15 मिनट कुछ तो मिल जाए, लेकिन 15 मिनट में बहुत कुछ मिला सर। बहुत जबरदस्त सेशन था। 15 मिनट में ही तो मैंने सारा जस्ट दिया है निकाल के। जी सर, थैंक यू सर। क्योंकि मेरे को अपने आप ही इतनी हैप्पीनेस हो रही है आज सेशन देके कि आज मजा आ गया, वाह वाली फीलिंग आ गई। तो मैं समझ सकता हूँ एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। एनीबॉडी अदर पर्सन? संगीता डमला जी, राहुल जी, कोई बोलना चाहेगा प्लीज? तो ट्यूसडे को भी मैं इसी का। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं संगीता डमला बोल रही हूँ। ओह मैडम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा। अगर ये बिगिनिंग में मॉर्निंग में स्टार्ट होता है तो पूरा दिन बड़ा एनर्जेटिक जाता है। हाँ, तो मैंने आपको बार बार मैं डमला जी के थ्रू आपको मैसेज देता हूँ कि मैडम जी को लाओ, उनको भी इसकी जरूरत है। नहीं, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। लिटरली पॉजिटिविटी मिली है मुझे तो बहुत ज्यादा। रोम में झंझोड़ दिया पूरी बॉडी में, ये है मजा। Actually, very true. This is the just beginning. My request, you please connect it and see the 2022 गोल्डन ईयर ना बन जाए तो कोई बात नहीं। डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली। और आप अपने और ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिए। मेरा तो है कि जैसे रामदेव बाबा ने घर घर में कपालभाति की है, मैंने स्विस हर घर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को सिखा देना है। बिल्कुल, मैं तो यही फील करती हूँ, यही पॉजिटिविटी हर एक के घर में जाएगी ना, दुख रहेगा ही नहीं, मुझे तो यही लगता है। आप देखो स्विस में सबसे बढ़िया है ये टेक्निक जो टोनी रॉबिन्सन कितने डॉलर देके सिखाता है यूएसए का। मैं आपको सबको इतने छोटे से एनर्जी एक्सचेंज है, कोई दे सकता है नहीं सकता, मैं फिर भी फ्री में सिखा रहा हूँ। और घर में बैठे देखो मिल रहा है, और क्या चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है हमें। मैडम ये तो आप फील कर रही हैं, लोग तो अभी भी सूरज निकल चुका है, सोए हुए हैं, वो सोए रह जाएंगे सारी उम्र। नहीं, ये तो जिसने इतना आज का सेशन मिस कर दिया उसने बहुत कुछ मिस कर दिया एक्चुअली में। बिल्कुल मैं तो यही कहूंगी। लेकिन फिर भी मैं लोगों को देने के लिए मैंने अपने पार्टनर को बोला कि इसको यूट्यूब पे उस पे डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी को देंगे ये। ठीक है राजू सर? नहीं जी, आपका सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूशन है, ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। थैंक यू मैडम। और
और कोई बोलना चाहेगा? सर मैं फिर से एक लाइन बोलना चाहूंगा सर कि आपका जो आप हार्ट से पूरा देते हैं, दिल से हाँ। देते हैं, इसलिए सबका दिल तक छूता है और वो काम करता है सर, यही बड़ी बात है। यस, मैं क्योंकि देने से पहले मैं प्रे करता हूँ कि जो भी मेरे दिल से निकलता है तो वो दिल में जाता है लोगों के। जी सर, दिस इज द ब्यूटी। मैं प्रे करके चलता हूँ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कि आज मैंने अपनी लाइफ का सबसे वंडरफुल सेशन दिया है। थैंक यू गॉड, मेरे को उसकी शक्ति देना। तो सर मैं भी आप ही की तरह था, मैं कोई बहुत बड़ा मेंटर या कुछ नहीं हूँ, मैं जस्ट सिंपल एक स्टेप आगे हूँ आपसे बस। ओके राजीव सर। Yes, we are good to close. So I would request everyone, those who haven't done energy exchange, please do the energy exchange. It's very मैडम अपना एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए प्लीज। मिश्रा जी जो भी हैं, राहुल जी, सब कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे भी एक एक्सपेंडिचर होते हैं, वी हैव टू स्पेंड देयर, सो प्लीज डू इट। ओके okay. It's very nominal, just 2,500 rupees. So kindly do it and do join the session on Tuesday. So have a wonderful day ahead. Stay blessed, and I will share the recording with all. Thank you. थैंक यू।